تو کیا کہیں گے کہ اب تو عدالتیں نہیں کھلی رات کو؟ کوئی بات نہیں، عدالتیں موجود ہیں، عدالتیں ضرور کھلیں گی انشاءاللہ العزیز۔ بار اور بینچ کا رشتہ بھی قائم رہے گا، اور تمام یہ جو دوسری جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، جن میں سر فہرست پی ٹی آئی ہے، وہ جائے گی، اور اس کے وکلا جو سینئر قانون دان ہیں وہ وہاں پہ دلائل دیں گے۔ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، عوام قائد اعظم کی ہے، ملک قائد اعظم کا ہے۔ ہم یہاں پہ بسنے والے ہیں، ہمارے ملک کا اپنا ایک آئین ہے، وہ بتا رہا ہے کہ آپ دوسرے انسان کے حقوق غصب نہیں کر سکتے، نہ ہمارا مذہب ہمیں اجازت دیتا ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے بہتر مستقبل کی خواہش لیے عتیق اسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ابراہیم کے ساتھ، اور فرائیڈے کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ آئین پاکستان کو معطل کر دیا گیا ہے، اور آئین پاکستان جو تھا وہ الیکشن کی طرف سے تھا، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشن دی تھی کہ پنجاب اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے کے بعد، جو کہ عمران خان صاحب کی طرف سے کی گئی تھیں، اس کے بعد الیکشن کا عندیہ دیا تھا، اور ایک آئینی بحران پیدا ہونے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشن دی تھی کہ یہاں پر جو ہے اپریل کے مہینے میں اور فلاں ڈیٹ کو جو ہے وہ 30 اپریل تک آپ الیکشن کروا سکتے ہیں۔ تو ایک دفعہ سے الیکشن کمیشن کی طرف سے دوبارہ جو ہے وہ آئین کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، اور سسپینڈ کرنے کے بعد کیا کنڈیشن ہے کہ آئین کی معطلی کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے تھا، میرے خیال سے رات کو عدالت بھی کھلنی چاہیے تھی، لیکن یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کوئی اسٹیٹ کو ایسے معاملات درپیش ہوں جس کی وجہ سے رات کے 12 بجے عدالتیں تو نہیں کھل سکیں، لیکن یہاں پر ایک زبردست قسم کا جو گھیراؤ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے نظر آ رہا ہے، اور وہ ہے پی ڈی ایم کا گھیراؤ۔ اس وقت جو براجمان ہیں قوتیں اور شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، ان کی حکومت اور اس کے علاوہ بیوروکریسی میں بیٹھے الیکشن کمیشن میں کچھ لوگ جو ہیں، یہ سارے کے سارا گروہ آرٹیکل 6 کی زد میں آ سکتا ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کچھ اگر آپ ہمیں وقت دیں تو میں ناظرین کو آرٹیکل 6 سمجھانا چاہوں گا کہ آرٹیکل 6 بیسیکلی ہے کیا۔ تو اس کام کے لیے آپ ہمارا جو یہ ویڈیو ہے اس کو دیکھیں، اس کے بعد ہم اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ جی، یہاں پر آرٹیکل 6 کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ کوئی بھی شخص اگر آئین کو ایبروگیٹس کرے، یعنی آئین کو منسوخ کرے، اور اس کے علاوہ سسپینڈ کرے، یعنی کہ اس کو معطل کر دے، یا اس کو سب ورڈز کرے یا تخریب کاری کرے اس میں، تو اس صورت میں جو ہے وہ کسی ایک شخص پہ جو اس کا ذمہ دار ہوگا، یا اس کے بارے میں جو بھی گروہ ہوگا، یعنی کہ مختلف اداروں کے لوگ جو مل کے آئین کو معطل کریں گے، تو اس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کہتا ہے کہ ان پہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ پابند کرتا ہے سپریم کورٹ کے مجلس شورا ایسے گروہ یا شخص کے لیے سزا کا تعین کرے گا جو کہ سزائے موت یا عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بارے میں مجلس شورا کو جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ڈائریکشن بھی دے سکتا ہے کہ اس کو آپ جو ہے آئین سسپینڈ کرنے پر کیا سزا دے سکتے ہیں۔ جی ناظرین، آرٹیکل 6 آپ نے دیکھا کہ اس میں کوئی بھی شخص ہو یا کوئی گروہ ہو جو آئین کو جو ہے ایبروگیٹس کرے، یعنی منسوخ کرے، اس کے علاوہ اس میں اس کو سسپینڈ کر دے یعنی معطل کر دے، اور اس کے علاوہ سب ورڈز کرے یعنی اس میں کسی قسم کی تخریب کاری کرے، تو اس صورت میں اس گروہ پہ یا اس شخص پہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے۔ تو کیا کہیں گے فرائیڈے صاحب کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کی طرف سے جو اکتوبر تک جو ہے وہ ڈیلے کر دیے گئے ہیں الیکشنز، تو آئین کو جو معطل کیا گیا ہے، آئین کو جو توڑا گیا ہے، تو اس کے اوپر کیا سزا بنتی ہے؟ اس کے اوپر عمر قید کی سزا بھی ہے، اس کے اوپر جو ہے سزائے موت بھی ہے۔ یہ 1973 کی جو اسمبلی تھی اس نے یہ آئین بنایا تھا، اور تمام جماعتوں نے متفق ہو کے آئین بنایا تھا، اور یہ بالکل اس وقت کے سپریم کورٹ کے جو جسٹس صاحبان کا بینچ بیٹھا تھا ان کی حکم عدولی کی گئی ہے، اور یہ سزا کے مستحکم ہیں، اور ان کو سزا واقعی ملنی چاہیے۔ اصل میں جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں انسان کے، یعنی کہ یہ الیکشن جو ہے بیسک فنڈامنٹل رائٹس کو جو ہے وہ اس کو معطل کیا گیا ہے۔ لوگ جو ہے اپنا حق خود ارادیت استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جماعت اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے۔ تو کیا کہیں گے کہ اب تو عدالتیں نہیں کھلی رات کو؟ کوئی بات نہیں، عدالتیں موجود ہیں، عدالتیں ضرور کھلیں گی
इंशाअल्लाह अज़ीज़ बार और बेंच का रिश्ता भी कायम रहेगा, और तमाम ये जो दूसरी जमातें हैं अपोजिशन की, जिनमें सरफ़हरिस्त PTI है, वो जाएगी, और उसके वकला जो सीनियर कानूनदान हैं वो वहाँ पे दलाइल देंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं बता दूँ कि मुस्लिम लीग नून ने और PDM ने ये रल के जो भी काम किया, ये बिल्कुल इंतहा पसंदी का काम किया है, और इसका नतीजा क्या निकलेगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुर्बानी का बकरा बन जाएगा, और ये बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्होंने सदर पाकिस्तान साहब को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की, हमने उनसे रजामंदी ली, हालांकि ये सरासर सफ़ेद झूठ था इनका। इन्होंने कोई उनसे इस मौजू पे गुफ्तगू नहीं हुई, कोई तबादला ख्याल नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद अवाने सदर में बैठे एक काबल और शरीफ आदमी को इन्होंने इन्वॉल्व करने की भी कोशिश। फ्राइडे, आप ये बताएं कि जो इस वक्त पाकिस्तान की डायरेक्शन है वो बिल्कुल गलत समत में जा रही है, तो कौन करवा रहा है? मतलब जो इस वक्त बनारसी ठग जिसको आप कहते हैं वो करवा रहा है, या कोई और ताकतवर शख्स करवा रहा है? इसमें दो ही नाम है, सदाबहार बनारसी ठग साहब, एक हैं आसफ अली जरदारी साहब, एक बनारसी मिस्टर 10%। मिस्टर 10% नहीं, मिस्टर 100%। अच्छा। और उसके बाद एक हैं जनाब वो जो 3 मरतबा खुद वजीर आजम रहे, और उनको इज्जत की जो है ना दाल रोटी अब रास नहीं है इक़्तिदार के बाद, वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, अल मरूफ मियाँ खराब शरीफ साहब। तो मकबूजा कश्मीर वाला हिसाब बनाया हुआ है कि जिस तरह कांग्रेस हो या ये जनता पार्टी हो, कोई भी इंडिया का पार्टी हो, वो मकबूजा कश्मीर के अंदर मुसलमानों की बुनियादी हकूक़ को गज़ब करती है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ अवाम के हकूक़ पर डाका डालने के लिए ये पहली ईंट रखी है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस ईंट को उखाड़ कर बहरुल कायल में फेंक देंगे। अगर हम अमेरिका की तरफ देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो 6 करोड़ और 50 लाख वोट लिए थे, और जीतने वाले जो बाइडन ने 7 करोड़ के करीब वोट लिए थे। 50 लाख वोटों का डिफरेंस था। वो भी जो मुबस्सरीन हैं, आलमी तज्जिया करने वाले, वो ये कहते हैं कि जो बाइडन है उसको 50 लाख की लीड के साथ जो है वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट लेके आई है। तो इस वक्त सदर जो ट्रंप हैं साहब उनके खिलाफ भी घेरा तंग हो रहा है, वो भी इस किस्म की बातें कर रहे हैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और इमरान खान भी कहते हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के अंदर जो है वहाँ पर ट्रंप के खिलाफ और यहाँ पर जो है वो वजीर आजम साहब का जो है इमरान खान साहब, उनके खिलाफ घेरा तंग हो रहा है। क्या कहेंगे? इस्टेब्लिशमेंट ने वाज़ेह मैसेज दे दिया है कि वो किसी काम में, सियासी में, पॉलिटिक्स में अमल दरामद नहीं रखेंगे, वो तो बात क्लियर हो गई है। दूसरी बात, अवाम इस वक्त इमरान खान साहब के साथ है, और बाकी रही अमेरिका की बात, वहाँ पे जो भी काम अच्छा करता है उसे करने का मौका मिलता है। बदकिस्मती से 1988 के इंतखाबात के बाद यहाँ पे जो भी काम करने वाले थे उनको उनकी हिफाजत नहीं की गई, और नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर के बाद जब ये आए हैं, जरदारी साहब प्रेसिडेंट, इन्होंने एक ही असूल अपना लिया है कि छिलकों की हिफाजत करो और दानों को दूर फेंको। इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह कौमें तरक्की नहीं करती। जिस कौम के अंदर कानून की बालादस्ती नहीं होगी, इंसाफ नहीं होगा, वो कौम मिट जाती है। अभी IMF ने भी ये कह दिया है ना कि अगर आप इस मुल्क में कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, बेसिक फंडामेंटल राइट्स, इंसानी हकूक लोगों के मुअत्तल कर देते हैं और लोगों से जीने का हक भी छीन लेते हैं, क्योंकि आप देखें तो इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया के मीडिया को इंटरव्यूज़ दिए हैं, और उस इंटरव्यूज़ में इस हुकूमत को तो सुबकी लग गई है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जो है IMF ने भी शर्त रख दी है कि अगर आप इलेक्शन की तरफ नहीं जाते और फंडामेंटल राइट्स, लोगों के हकूक जो है वो गस्ब करने से बाज नहीं आते, तो आपको कोई पैसे वैसे नहीं मिलने। पैसों का और IMF का तो बाद में तल्लक वास्ता बनता ना। ये कायदे आज़म का पाकिस्तान है, अवाम कायदे आज़म की है, मुल्क कायदे आज़म का है। हम यहाँ पे बसने वाले हैं, हमारे मुल्क का अपना एक आइन है, वो बता रहा है कि आप दूसरे इंसान के हकूक गज़ब नहीं कर सकते, ना हमारा मज़हब हमें इजाज़त देता है। आप देखें ये पंजाब में बलीगुर रहमान गवर्नर पंजाब है, वल्द अब्दुल रहमान साहब, तो इन्होंने डेट दे दी है। सुबह सराद में मौलाना फजल रहमान के समदी साहब हैं, हाजी मोहम्मद अकरम खान साहब,
वल्द मोहम्मद शफी अंसारी साहब, उन्होंने डेट नहीं दी है। तो ये इनकी पहले दिन से ही नीयत खराब थी कि इलेक्शन नहीं कराने। जब इलेक्शन कराएंगे तो ये सिफर सिफर रह जाएंगे। ना कराने की वजह भी यही है। ना कराने की वजह भी यही है। बजट आता है तो आइंदा साल के लिए अवाम के पास एक पैसा हुकूमत के पास नहीं कि लोग रहने देंगे। क्या कहते हैं कि अगर पैसा नहीं मिलता तो लोग सड़कों पे आएंगे, अफरा तफरी होगी, हालात खराब होंगे? हालात अल्लाह ताला ना खराब करे मुल्क के, लेकिन गरीब जितना पिस चुका है ना इस गवर्नमेंट के अंदर, इतना कभी भी नहीं पिसा था। इन पर पूरी दुनिया में कोई एतबार नहीं करता। एक मजदूर जब मजदूरी करता था वो 600 रुपए की मजदूरी करता था एक दिन में, तो उस वक्त 100 रुपए या 150 रुपए किलो घी लेके चला जाता था और थोड़ी सी चीनी लेता था, थोड़ी सी दाल लेता था, घर जाके खाना बना लेता था। अब तो 600 रुपए किलो घी है, तो मतलब क्या लेके जाएगा घर पे? अब 600 रुपए 800 रुपए की मजदूरी भी नहीं मिल रही, 600 की भी नहीं मिल रही। एक मजदूर की हफ्ते की 4 दिन की अगर मजदूरी लग जाती है तो उसमें उसके बच्चे ना तो स्कूल जा सकते हैं, ना उस गरीब आदमी के बच्चे अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं और ना 3 वक्त का अच्छा खाना खा सकते हैं। गरीब के बच्चे भूखे हो गए, चाहे किसी के 2 बच्चे हैं या चाहे 3 बच्चे हैं। मियाँ शरीफ के 2 ही बच्चे सियासत में आए हैं, वो पूरा मुल्क लूट के खा गए हैं। हाकम अली जरदारी का एक ही बेटा सियासत में आया, शुक्र है खुदा का एक ही था, आसफ अली जरदारी। उसने पूरे सिंध को और पूरे मुल्क को कंगाल कर दिया। 15 साल से बैठा हुआ वहां पे। हाँ, ये जहां पे मर्जी भी बैठे, आखिर में तो इन्होंने जहन्नम में भी बैठना है, लेकिन अवाम को जहन्नम वसल ना करे। अल्लाह ताला इस रमजान के सदके पाकिस्तान की खैर करे, मुल्क की खैर करे, पीटीआई की खैर करे, इमरान खान की खैर करे। आखिर में ये आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि इस मुल्क के अंदर ये जो 23 किलोमीटर की हुकूमत है और शहबाज शरीफ की हुकूमत है, तो किसी सूबे के अंदर तो इनकी हुकूमत नहीं है, तो ये हुकूमत कायम कैसे है? मतलब कौन इसके पीछे है? मुझे तो समझ नहीं आती कि ये कायम कैसे है और इनकी इतनी रिट कैसे बरकरार है? रिट सिर्फ 1 वोट 1 मैन के ऊपर इनकी कायम है। और दूसरा, इंतखाबात तक अपोजिशन ने बायकॉट किया, वो अपोजिशन का हक है, राइट है। ये 25 किलोमीटर की बजाय अब 5 किलोमीटर पे आ सकते हैं, 25 किलोमीटर की बजाय 30 किलोमीटर पे नहीं जा सकते। ये जितनी आखिरी इनकी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की भी, नून लीग की भी। आखिर में शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को क्या सजेशन देना चाहेंगे? यही है कि आप मुल्क कौम की खातर, गरीब आवाम की बका की खातर, फलाह बहबूद की खातर, खुदा और उसके रसूल के सदके यहाँ से कूच कर जाएं। आपको इस मुल्क की, वतन की मिट्टी भी नहीं मिलेगी। पैसा आपके पास होगा, जायदादें आपके पास होंगी, मुल्क चलेगा, नबी के सदके चलेगा, कलमा के सदके चलेगा, लेकिन आपका कोई नाम लेने वाला नहीं। इमरान खान तो कहता है यही दौलत वौलत पैसा वैसा इनका वापस लाना है मैंने। वो एक राइट है, एक साबका हुक्मरान का अवाम से वादा है, बड़े बड़े लोगों से वापस हो गए। ये स्वीक्स बैंकों के पैसे वापस आ जाएं, स्वीक्स बैंकों के पैसे वापस आ जाएं, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ यहाँ पे कोई भी गरीब ना भूखा सोए और कर्जा भी उतर जाए। फ्राइडे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला एक न्यू सेशन के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उम्मीद है कि जितने भी हमारे ऑडियंस थे उन्होंने आर्टिकल 6 के ऊपर हमारी जितनी भी स्पीच थी, जितनी भी बात थी और जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे और जो हमारा मकसद था आप तक पहुंचाने का, वो पूरा हुआ होगा। उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और उम्मीद है कि आप बहुत जल्द हमें कमेंट्स भी करेंगे और अपनी राय का इजहार भी कमेंट्स में करेंगे, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स लेके आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।